Welcome learners. Welcome to NCERT Class 7 History. Today in History we are going to learn about Lesson 1 Tracing Changes Through a Thousand Years. और ये 1000 years थे in between 700 to 750 and our topic is Reason and Empire. Dear learners, empire means large kingdoms and region means their area. So आज हम कुछ large kingdoms और उनके areas के बारे में जानेंगे. But in this chapter, we are just taking an overview about these empires and region. But in coming chapters, we will study in detail about these empires. So now, before going to start our topic, let me give you a glimpse of our previous topic. In the last video, we learned about the new social and political groups that emerged during medieval period. We learned about some technical development. In these technical development, we learn about the Persian wheel, spinning wheel, firearms. We see some food changes during this medieval period of great mobility. We have seen that the group of people move from one place to another place via land route or sea route, and we see some important social groups emerge during medieval period, and the changes took place in the life of forest dwellers. कैसे वो मजबूरी में दे हैव टू मूव फ्रॉम फॉरेस्ट टू इन नियर सोसाइटीज़, एंड जिन्होंने मूव नहीं किया सो दे बिकेम पीजेंट्स. पीजेंट मीन्स किसान. दे बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एंड स्लोली these social differences or economic difference led the foundation of the subcaste in our Indian society. और ये सब कास्ट जो होती थी इसके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे और कुछ एल्डर पीपल ये इंश्योर करते थे कि सभी उनको फॉलो करें, और ये जो असेंबलीज थी ये जाति पंचायत के तौर पे जानी जाती थी. नाउ दिस इज़ आवर टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, रीजन एंड एम्पायर. डियर लर्नर्स, ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड्स देयर वर मैनी किंगडम्स लाइक चोलास, तुगलक्स एंड मुगल्स. दे acquired, encompass means acquired, many regions under their territory. For example, historian found a prasasti. Prasasti means an inscription. In that Sanskrit prasasti, writer praised about the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban and explained that he was the ruler of a vast empire. His empire stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in west. उसका जो किंगडम था वो इतना बड़ा था कि ईस्ट में वो बंगाल तक और वेस्ट में वो अफ़गानिस्तान तक जाता था. इतना लार्ज एरिया जो है वो गियासुद्दीन बलबन के अंडर आता था. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल साउथ इंडिया. ऑल ऑफ आर साउथ इंडिया वो भी गियासुद्दीन बलबन के टेरिटरी के अंडर एक्वायर्ड था. बिसाइड दिस इंफॉर्मेशन उस प्रशस्ति में और क्या लिखा है, दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स लाइक गोंड, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, यहाँ के जो राजा थे या लोग जो थे यहाँ के, दे फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज़. उनकी आर्मी के सामने से हट जाते थे या वहाँ से मूव कर जाते थे. ये सब उस प्रशस्ति में लिखा गया है. यू कैन सी दिस मैप. दिस was the area or territory of Ghiyasuddin Balban. But some of our historian don't believe in these kind of inscription or praise. They thought that these are exaggerated claims, overvalued claims. उनका मानना था कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इन इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है, सो वो इसमें बिलीव नहीं करते थे.
Now, languages and reason. Amir Khusro, he was a poet. So, during 1318, he found one important thing that ki in India, every region have their own language. For example, the area of Sindh, they have Sindhi language. The area of Lahore have Lahori, Kashmir, Kashmiri, so and so on. And in the around Delhi, there is Hinduvi language. So he also explained that there is a single language also which is in contrast of these languages, and that is Sanskrit, which did not belong to any region. वो संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं बोली जाती थी. इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, और ये जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं थी. ये जो थी ये ब्राह्मण्स, ओनली द ब्राह्मण्स डू संस्कृत. डियर लर्नर्स, these kingdoms like Cholas, Khiljis, Tughlaqs or Mughals, they were able to build an empire. That means कि वो इतने कामयाब तो थे कि एक बिग एम्पायर बना सकें, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. बट ये जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं थी कि सभी किंगडम्स जो हैं वो इक्वली स्टेबल हो जाएं और सक्सेसफुल हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल, when British came to India, at that time Mughal empire started declining. जो मुग़ल की जो पावर्स थी ब्रिटिश के इंडिया में आने के बाद, वो जो पावर थी वो डिक्लाइन होने लगी. और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? इट लेड टू द री एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट. जब मुग़ल एम्पायर्स डिक्लाइन हुई, कम हुई, सो जो रीजन्स के जो भी छोटे किंग्स थे तो वो फिर से उन्होंने अपनी पावर को गेन करना शुरू किया, और इस तरीके से रीजनल स्टेट्स जो हैं वो री एमर्ज होने शुरू हो गए. नाउ डियर लर्नर्स, वी विल लर्न अबाउट द रिलीजियस चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 1000 years. This period witnessed major development in religious traditions, especially in Hinduism. In Hinduism, people included the worship of new deities. पहले हम जो नेचर की पूजा करते थे, now we included some new deities. कुछ नए भगवान और देवी देवताओं को जो है हमने अपनी वर्शिप में इंक्लूड कर लिया था. एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड. किंग्स जो थे वो अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सुंदर बिग टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट करवा दी थी. एंड ब्राह्मण्स, द प्रेस्ट, also emerge as dominant groups in society, because as I already told you that कि संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो सिर्फ ब्राह्मण्स को आती थी, और इस संस्कृत लैंग्वेज ने, द नॉलेज ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. सोसाइटी में ब्राह्मण्स का मान सम्मान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. इसके अलावा जो राजा जो थे, जो जिस रिलीजन को फॉलो करते थे, तो उसमें उसकी वजह से भी ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण्स को, संस्कृत को पेट्रोनाइज किया था. पेट्रोनाइज का मतलब होता है उसकी रक्षा करना, उसको बढ़ावा देना. ठीक है, दैट इज़ पेट्रोनाइज. यहाँ पे हिंदुइज़म में एक और भी चेंज हुआ, एंड दैट चेंज इज़ द आइडिया ऑफ भक्ति मोमेंट. यहाँ पे वर्शिप करने का तरीका जो था उसमें चेंज हुआ, जो कि पहले काफ़ी रिचुअल जो थी वो काफ़ी हार्ड थी, रिस्ट्रिक्टेड थी. सो अब थोड़ा सा लेनेंट हुआ और एक नया वे जो है वर्शिप का वो निकला, एंड दैट इज़ भक्ति. एंड व्हाट इज़ दिस आइडिया ऑफ भक्ति? इसके जो फॉलोवर्स थे वो संगीत के थ्रू और म्यूज़िक, पोइट्री वगैरह के थ्रू जो है वो अपने ईश्वर की, अपने गॉड की पूजा करते थे. इसमें उनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एंड रेगुलेशंस वो फॉलो नहीं करते थे. सो दिस ऑल्सो एमर्ज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. बिसाइड्स द चेंजेस इन द हिंदुइज्म, देयर सम न्यू रिलीजन्स ऑल्सो अपीयर्ड इन आवर सबकॉन्टिनेंट.
For example, Islam religion. Merchants or migrants, they brought the holy book Quran in India during medieval period around 7th century. Muslim regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of one God named Allah. मुस्लिम जो होते हैं, जैसे हिंदू जो रिलीजन है उसमें भगवद गीता, रामायण ये होली बुक है, वैसे ही मुस्लिम रिलीजन में कुरान होली बुक है एंड दे बिलीव इन वन गॉड एंड द नेम ऑफ द गॉड इज अल्लाह. एंड मैनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमास. और बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने इस्लाम रिलीजन को पैट्रोनाइज किया, उसका प्रचार प्रसार किया, उसको फॉलो करना शुरू किया और इस तरीके से ये रिलीजन जो है वो एक्सपैंड हुआ इन आवर सब कॉन्टिनेंट. इस्लाम रिलीजन में भी जो उसके फॉलोवर्स हैं वो अपने रिलीजन्स को डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर आर 2 सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम रिलीजन. इन मुस्लिम रिलीजन दीज 2 सेक्ट्स आर सिया एंड सुन्नी. सिया मुस्लिम्स जो हैं दे बिलीव दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ नेम्ड अली वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. जबकि जो सुन्नी जो मुसलमान हैं दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली खलीफास. यहाँ बिसाइड्स दीज 2 सेक्ट्स सिया एंड सुन्नी, some other school of Islamic law also present, for example Hanafi, Safi, Maliki, Hanabali, etc. And now the last topic of our chapter 1, thinking about time and historical periods. If you remember, dear students, in 6th class history हमने डिवीज़न किया था. हिस्टोरिकल जो है इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था इन 3 सेक्ट्स, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. सो हिस्टोरियंस जो हैं हमारे, दे डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स. हिस्टोरियंस जो है सिर्फ टाइम को ऐसे नहीं लेते हैं कि 1 साल बीत गया है, 2 साल बीत गए हैं, इस तरीके से नहीं. दे टेक टाइम एज ए रिफ्लेक्टर. और वो टाइम क्या रिफ्लेक्ट करता है? चेंजेस इन सोसाइटी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर आइडियाज़ चाहे नॉर्मल इकोनॉमिक आइडियाज़ हों या फिर पॉलिटिकल आइडियाज़ हों, रिलीजियस आइडियाज़ हों, एंड द चेंजेस इन द बिलीफ सिस्टम. सो हिस्टोरियन जो है इनकी डीपली स्टडी करता है. एंड दिस स्टडी बिकम ईजियर व्हेन वी डिवाइड आर पास्ट इनटू सेगमेंट्स. और जब हम अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को डिवाइड करके सेगमेंट्स में थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं तो ये स्टडी जो है हमारे लिए ईजी हो जाती है. सो देर इज़ अ डिवीज़न इन फ्रंट ऑफ यू that done by the British historian. I'm showing you this division done by James Mill, a historian. He divided Indian history into 3 parts: Hindu, Muslim and British. This division is based on the religion of the rulers. Now, some important facts about history of 7th class. 7th class history are often described as medieval history. Dear students, as I already told you that the history of 6th class known as ancient history and the history of 7th class known as medieval history and the history of 8th class known as modern history. So in this we will find out more about spread of peasant society. Peasant society means फार्मर्स की जो सोसाइटी थी, कैसे वो चेंज हुई, कैसे वो स्प्रेड हुई, उसके बारे में हम मेडिवल इंडिया में पढ़ते हैं. इन दिस वी विल लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज. हम जो अपनी मेडिवल हिस्ट्री है इसमें पढ़ते हैं कि कैसे हिंदू रिलीजन और इस्लाम रिलीजन जो है वो कैसे फेमस हुआ और कैसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं वो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में पहुंच गई. These 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. हमने देखे थे कि कैसे मैप्स बनाने में, ट्रैवल करने में,
फार्मर्स की लाइफस्टाइल में, टेक्नोलॉजी में, फूड बेवरेजेस में कैसे चेंज आए। तो ये जो मेडिवल पीरियड था ये बहुत सारे चेंजेस का साक्षी है, विटनेस है। Societies of subcontinents were transformed often and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the European trading companies. It means subcontinents जो थे वो rich थे in resources और इन्हीं resources से attract होकर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने स्टार्टिंग में ट्रेड करना स्टार्ट किया and slowly they became the ruler of these subcontinents. So dear student, this is the end of our chapter. Now exercise time. And dear student, this is our NCERT exercise. You must try the bookwork of this exercise at your home. In the next video, I will help you with answers. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you.